Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Geometry. Focus points, point, line, line segment and ray, measuring and drawing line segments, open and closed figures, circle, drawing a circle of given radius. Geometry is a branch of mathematics that explains how points, lines, planes and shapes are related. We have already learned about basic geometrical figures. Let's recall them. देखिए प्रीवियस क्लास में आप कुछ बेसिक जियोमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ के आए, तो सबसे पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं. ओके, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. Point, it is the smallest shape in geometry. It shows an exact location. It has no width, no length and no height. It is represented by a dot. It is named by any capital letter of English alphabet. Your A is a point. देखिए कोई भी डॉट, एक छोटा सा जो डॉट होता है ना, स्मॉलेस्ट शेप है ये पॉइंट. जैसे इसको आप कोई भी अल्फाबेट दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए. ओके, लाइन. अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड indefinitely in both the directions, usually along a straight path. It is represented by the arrowheads on both sides. It has no fixed length. It is named by any two capital letters of English alphabet. Here PQ is a line. देखिए लाइन आपके क्या होते हैं, जिसके कि इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं होते हैं. ओके, आप इसको दोनों डायरेक्शन में इसको इंक्रीज कर सकते हैं इनडेफिनेटली, बोथ डायरेक्शंस में. ओके, line segment. A line segment is a part of line. It has a definite length and is marked by two endpoints. Here RS is a line segment. Line segment actually में आपके line का ही part होता है और इसकी definite length होती है क्योंकि इसके initial and end point दोनों ही होते हैं. ओके, जैसे कि आपको दिया गया RS. अब आप इसे बढ़ा नहीं सकते हैं. ओके, ray. A ray is a part of line. It has a starting point, that is initial point, and goes on indefinitely in one direction. It has no fixed length. Your A, B is a row. अब रे आपकी एरो की तरह होती है. इसका इनिशियल पॉइंट तो होता है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता है. सो आपको एक डायरेक्शन में आप इसे इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं. ओके, और इसको शो किया जाता है. देखिए इसका साइन है, एक साइड आपका डॉट होता है एंड दिस वन लाइक एरो. सो ए बी इज अ रे और ये भी आपका लाइन का पार्ट होता है. Curved line. A curved line is not straight. It cannot be drawn with the help of a ruler. It can be drawn by freehand. Here EF is a curved line. Curved line आपकी कैसी होती है, जो बिल्कुल भी straight नहीं होती है, रूलर, जिसे हम रूलर से नहीं ड्रॉ कर सकते. Okay? Measuring and drawing line segments. A line segment is measured and drawn with the help of a ruler or scale. आपको पता है ना, scale की help से हम line को draw कर सकते हैं. Okay? Measuring a line segment. Measure the length of the following line segment AB. To measure the line segment, we follow the given steps. Step 1, keep the 0 centimeter mark of the ruler at one end of the line segment. Step 2, read the mark on the ruler with which the other point of the line segment coincides. This reading will give the measure of line segment AB. So the length of given line segment AB is 5 centimeter. अब अच्छा देखिए, कोई भी आपको line segment दी गई है, आपको इसको किस तरह से measure करना है, with the help of ruler और scale. सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट है ना 10 ये आपका 0 सेंटीमीटर्स पे होना चाहिए. ओके, इसके बाद जो भी आपके पास नंबर आएगा जहाँ पे आपका बी पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करेगा, तो आप उसको रीड करेंगे कि कितना आ रहा है. राइट, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ दी गई है लाइन सेगमेंट की वो है 5 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट, ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट. आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की. तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आप एक पॉइंट मार्क कर देंगे. ओके, और ये हमेशा ना आपके इसको ए या बी या कोई भी आप पॉइंट नाम दे सकते हैं. ये हमेशा आपका 0 सेंटीमीटर से शुरू होना चाहिए. ओके, तो देखिए आपको सबसे पहले ये जो 0 सेंटीमीटर यहाँ पे रखना है, फिर आपको 3 सेंटीमीटर बोला गया है, तो आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो आपकी लाइन सेगमेंट बन जाएगी. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. A point is named by any dash letter of English alphabet. आप इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर उसको नेम दे सकते हैं. ओके, A, B, C, D, whatever. Next, a line segment is a part of. line segment किसका पार्ट होता है, लाइन का. ओके, and a dash has an initial point. initial point किसका होता है, रे का. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं more about lines, line segments and rays. Number 1, intersecting lines. Two lines crossing each other at a point are called intersecting lines. दो लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये intersecting lines है. Okay, your AB
AB and CD are intersecting lines which intersect at point O. तो ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल O, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, ये जो दो क्रॉसिंग लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, मैथ्स फैक्ट, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दो लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है that is point of intersection. Next, parallel lines. Lines which never meet are called parallel lines. They are always on an equal distance from each other. Here A, B and C, D are parallel lines. देखिए parallel lines आपकी इस तरह से सीधी होती हैं जो आपस में कभी भी, आप उनको कितना भी इंक्रीज कर लीजिए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी. ओके, तो हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइंस ऐसी होती हैं, आई मीन पैरेलल लाइंस. ओके, स्ट्रेट होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है. Next, angle. When two rays or line segments meet at a point, they form an angle. The symbol used for an angle is this. The adjacent figure shows angle ABC. देखिए जब कभी भी दो रेज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपकी ये रे है या फिर आपकी ये रे है, तो जिस पॉइंट पे आपकी दो रेज या लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं वो एक एंगल बनाती हैं. ओके, एंगल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, सिंबल से. तो यहाँ पे जैसे कि आपका है ABC, तो आपको कैसे लिखेंगे, एंगल ABC. ओके, फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एंगल. टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. हियर B and BC आर द आर्म्स ऑफ एंगल ABC. तो ये जो दो रेज होती है ना आपकी, आप इसे हम कहते हैं, जैसे ये आपकी आर्म्स है. ओके, एंड ये जो ये है आपकी, ये भी आर्म्स है. ओके, the meeting point of the arms of the angle is called the vertex. Here point B is the vertex of angle ABC. So what is vertex? देखते हैं, जहां पे आपके meet कर रहे हैं, this is vertex. Okay, this point. Points marked within the space enclosed by the arms of the angle are called interior points. Here points X and Y are the interior points of angle ABC. Points marked outside the arms of the angle are called exterior points. Here points L and M are the exterior points of angle ABC. Okay, so आपके ये एंगल है ABC, ये हमने पढ़ा था. अब इंटीरियर पॉइंट जो इसके अंदर है, ओके, इंटीरियर पॉइंट्स इसके देखते हैं. इंटीरियर पॉइंट्स है आपके X and Y, जैसे कि दिया गया आपके जो प्रीवियस पेज में फिगर था. ओके, एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो पॉइंट्स आपके ये जो आर्म्स है ना उनके बाहर है, जैसे कि आपके L है या M है, इसके बाहर है, राइट. तो ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, maths fact, while naming an angle by 3 letters the vertex point is always written in the center. Okay, जब कभी भी हम एंगल लिखते हैं ना तो जो वर्टेक्स होता है आपका वो हमेशा आपका वर्टेक्स पॉइंट बीच में होना चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे बात की एंगल ABC, एंगल ABC, तो इसमें देखिए आपका वर्टेक्स क्या है, B, जो हमेशा आपका बीच में आएगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स. Open figures, figures that start at one point and end at another point are called open figures. Each one of the figures given below is an open figure. देखिए open figure आपको पता है एक एंड पे वो आपकी स्टार्ट हो जाती हैं और दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाती हैं, मतलब उनका सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. देखिए सारी ओपन फिगर्स हैं आपकी. क्लोज फिगर्स, figures that start and end at the same point are called closed figures. Each one of the figures given below is a closed figure. Closed figure मतलब जो आपकी जहाँ से शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई. ओके, राइट, या जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, ये सारी आपकी क्लोज फिगर है, मतलब इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है. पॉलीगॉन्स, figures made up of 3 or more line segments are called polygons. Polygons are named according to the number of their sides. All the shapes given below are the examples of polygons. अच्छा, polygons आपके बनते हैं 3 या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से. पॉलीगन आपका हमेशा क्लोज फिगर होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन से बना होता है. ओके, तो कभी भी आप देखिए दो स्ट्रेट लाइन से आप पॉलीगन नहीं बना सकते, वो हमेशा 3 से बनेगा. ओके, जो 3 साइड्स आपकी 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है ट्राइएंगल. ट्राई मीन्स 3. इसी तरह से 4 से आपका बना है स्क्वायर और ये आपका रेक्टेंगल है, 4 साइडेड पॉलीगन. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स. ये आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस. ओके, पैरेलल लाइंस, ये आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ये आपका एंगल है, राइट.
Circle. A circle is a simple closed figure whose every point is equidistant from a fixed point inside it. This fixed point is called the center of the circle. In the adjacent figure, X, Y, Z is a circle and O is the center of the circle. We can see various examples of circles in our daily life, such as coin, CD, clock, right? सर्कल आपका क्या होता है, एक सिंपल सा क्लोज फिगर है जिसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस. जैसे आपका ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सर्कल. ओके, तो ये जो ओ है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है सेंटर, सर्कल का सेंटर. अब जैसे कि आप कॉइन या सीडी देखते हैं, ये भी तो सर्कुलर शेप में है ना. पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. रेडियस. A line segment joining any point on the circle with the center of the circle is called radius of the circle. All the radii, plural of radius, of the circle are equal. Here OP, OM and ON are the equal radii of the circle. अब radius क्या होता है आपका, एक line segment जो circle के किसी भी point को join कर रहा है उसके center से. For example, this is your circle. ये है इसका O point center. अब आप O से, जैसे कि आपको दिया गया ON, ये आपका radius है, यहाँ आप बना दीजिए m, यहाँ आपके पास व्हाट इज दिस p. ओके, तो रेडियस, रेडियस सिंगुलर, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियस. तो आपके रेडियाई क्या है, ओ एम रेडियाई. ओके, ओ एम, ओ पी, ओ एन, यानी सेंटर से आप कहीं पे भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ना तो आपका रेडियस बन जाएगा. ओके, चाहे आप यहाँ बनाए, कहीं पे भी वो सब आपका रेडियस होगा. राइट. Diameter. A line segment passing through the center with its endpoint on the circle is called diameter of the circle. All the diameters of the circle are of equal length. Your MN and PQ are the equal diameters of the circle. अब diameter क्या है, देखिए एक line segment जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है, ये सेंटर है. ओके, और ये इसके सेंटर से पास हो रही है, चाहे वो ऐसे हो रही है, चाहे वो इस तरह से हो रही है, चाहे ऐसे हो रही है या फिर ऐसे हो रही है, मतलब सेंटर से पास होनी चाहिए. एंड उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हैं, इस लाइन की बात करें तो उसके एंड पॉइंट सर्कल पे हैं. तो ये होता है आपका डायमीटर. और जितने भी जो डायमीटर्स होते हैं सर्कल के वो सारी इक्वल लेंथ के होते हैं. ओके, एंड डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. राइट. Chord. A line segment having its endpoints on the circle is called a chord of the circle. Here A, B and C, D are the chord of the circle. अब chord की अगर हम बात करें तो chord line segment होती है जिसके दोनों points आपके इसके जो end points होते हैं वो circle पे ही होते हैं. Okay, for example, this is C, D and A, B. ये आपकी chord है. Okay. नाउ अगर आप ये सोचेंगे कि जो डायमीटर है उसके भी तो एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, तो क्या डायमीटर भी कोड है? ऑफ कोर्स डायमीटर भी आपका कोड होता है. राइट. नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल की जो बाउंड्री होती है, लेंथ जो होती है, दिस लेंथ, फॉर एग्जाम्पल ए टू ए, ये जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. ओके. आर्क. Any part of a circle is called an arc of the circle. Usually name an arc by 3 points of the arc, 2 endpoints and a point in between them. Here ABC is an arc of the circle. अब आर्क क्या होती है? देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट जो सर्कल का है वो आर्क है, तो यूजुअली हम 3 पॉइंट्स जो होते हैं उसको आर्क बोलते हैं, जिसकी 2 पॉइंट्स आपके होते हैं सर्कल पे एंड एक उसका बीच में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये सर्कल है, दिस इज द सेंटर A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट. सो A, B, ये जो आपका पार्ट है, ओके, दिस इज आर्क. ओके, ABC. Semicircle. Just half of a circle is called a semicircle. Your XYZ is a semicircle. Semicircle is also an arc of the circle. Semicircle का मतलब होता है सर्कल का हाफ. ओके, तो जैसे आपके पास है XYZ, ये XYZ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज योर सेमी सर्कल. एंड सेमी सर्कल जो है वो सर्कल की आर्क भी होती है. ओके, मैथ्स फैक्ट. एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर. ओके, रिमेंबर दैट. डायमीटर, हर डायमीटर कॉर्ड है बट हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायमीटर जो है सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की. अ सर्कल हैज मेनी रेडियाई, chords and diameter, but it has only one center.
सर्कल के रेडियस, डायमीटर, कोड्स की बात करें बहुत सारे होते हैं, बट उसका सेंटर हमेशा एक ही रहता है. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल. अच्छा, रेडियस और डायमीटर जो है उसके बीच का क्या रिलेशन है सर्कल में? As shown in the figure, AB is the diameter of the circle. OB and OA are the radii of the circle. Since OA is equals to OB, AB is equals to OB plus OA and OA plus OA is equals to OA. Okay, कैसे आया देखिए. सबसे पहले हम देखते हैं इसे. आपके पास एक सर्कल है. ओके, रेडियस आपकी इक्वल होती है, तो OA जो है आपका वो इक्वल है OB के. ओके, एंड ये जो AB है, AB किससे बना है? AB बना है OA प्लस OB से, राइट. अब OB की जगह हम OA रख सकते हैं. क्यों रख सकते हैं? बिकॉज दोनों इक्वल है. चाहे तो आप OA की जगह OB रख लीजिए या OB की जगह आप OA रख लीजिए. ओके, तो देखिए AB इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे इसे OA और OB को भी हम लिखेंगे OA बिकॉज बोथ आर इक्वल. ओके, नाउ AB इज इक्वल्स टू 2OA. अब ये 2OA कहाँ से आया? 1OA 1OA, 1 + 1 2, 2OA हो गया. ओके, तो यहां से रिलेशनशिप आ गया. AB इज व्हाट? AB इज डायमीटर, तो डायमीटर 2 इंटू OA इज व्हाट? OA जो है आपका क्या है? रेडियस. 2 इंटू रेडियस. ओके, तो यहां से आपका यह फॉर्मूला आ गया, रिलेशनशिप आ गया. एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. आपको रेडियस गिवन है, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट डायमीटर. ओके, तो डायमीटर अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, डायमीटर होता है हमेशा रेडियस का डबल, यानी कि 2 इंटू रेडियस. So 2 into 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. तो डायमीटर आपके पास कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन है वो देखते हैं. ड्राइंग क्या कर दिया? क्वेश्चन नहीं था, अगले पेज पे आना. अच्छा, हाँ वही तो मैं कह रही पिछला. चलो, नेक्स्ट, ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस. अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपको रेडियस गिवन होगा. अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एंड अ रूलर. हमेशा कंपास एंड रूलर के हेल्प से ही आप उसे ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टेप 1, stretch out the arms of the compasses equal to the given length such as 3 centimeter. Step 2, keep the needle arm at the fixed point, say O in the paper. Step 3, move on the pencil and around the point O. The figures obtained is the required circle. सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर का सर्कल, 3 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, आपको इस तरह से पेंसिल और कंपास से मेजर कर लेना लेंथ. ओके, देन आप क्या करेंगे? एक कंपास को इस तरह से रखेंगे एंड देन पेंसिल से वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉ होगा. तो आप उसको इस तरह से घुमाएंगे. ओके, तो आपका सर्कल बन जाएगा. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर्स नेम द सेंटर. सेंटर है आपका O, रेडियस. ओके, अब आपसे ना रेडियस पूछी गई है. आप सेंटर से जहां पे भी आपका पॉइंट जा रहा है वो आपकी रेडियस है. तो देखिए आप OA लिख लीजिए, दैट इज ऑल्सो रेडियस. OB लिखेंगे या OC लिखेंगे, ये आपकी रेडियस है. ओके, कोई भी आप रेडियस लिख सकते हैं. कॉर्ड है आपके पास DE एंड डायमीटर इज BC. ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से बी पार्ट्स में आपसे पूछा गया सेंटर, रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर. इन्हें आप खुद से करेंगे. ओके, एंड स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.